Hello students, this is Priya. Welcome back to the second and the last part of this series where we are studying the properties of addition, subtraction, multiplication, division of whole numbers. In this lecture we are starting with the exercise 2.2 and 2.3. So let's get started. Add the following by suitable rearrangement. तो यहाँ पे क्या करना है? We have to rearrange the given terms. Okay. So the first question is 437 plus 680 plus 363 plus 220. तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट करना है. तो कैसे रीअरेंजमेंट करना है? सो जहाँ पे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए. ओके. सो यहाँ पे वी विल सी द यूनिट्स प्लेस. यहाँ पे 0 है, 3, 0, 7. तो 7 है, 7 प्लस 3 तो एक 10 बनता है. 7 प्लस 3 इज 10. तो मतलब लास्ट प्लेस में 0 होगा. तो एडिशन ऑफ नंबर्स दैट 0 एट द यूनिट्स प्लेस इज मच इजियर. तो ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे. यहाँ पे 0 और 0 तो मतलब इट विल बी 0 ओनली. सो यू विल गेट 437 प्लस 363 प्लस 680 प्लस 220. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 7 प्लस 3 इज 10. Carry 1. 6 plus 3 is 9 plus 1 is again 10. Carry 1. 4 plus 1 is 5 and 5 plus 3 is 8. तो इसका आंसर आया 800 plus 0 plus 0 is 0. 8 plus 2 is 10 और carry 1. तो 6 plus 2 is 8 और plus 1 9. तो अभी ये तो बहुत इजी हो गया. यूनिट्स प्लेस और टेंस प्लेस में 0 है तो आंसर में भी 0 ही आएगा. And 9 plus 8 will be 17. So your answer will be 1700. So that is 1700. Second question, यहाँ पे भी सेम exactly same process apply करना है. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 95 plus 96 plus 97 plus 98 plus 99. तो यहाँ पे 99 है. इसमें मैं क्या ऐड करूंगी कि मुझे 100 मिलेगा? 1. 9 प्लस 1 इज 10. तो 1 और 99. 2 प्लस 98. 3 प्लस 97. 4 प्लस 96 और 5 प्लस 95. ऐसा रीअरेंजमेंट करेंगे. ओके. सो यू विल गेट 1 प्लस 99 प्लस 2 प्लस 98 प्लस 3 प्लस 97 प्लस 4 प्लस 96 प्लस 5 प्लस 95. तो इनका एडिशन करेंगे हम लोग पहले. तो यू विल गेट इधर 100, here also 100, again 100, 100 and then 100. So total 5 बार we will get 100. तो it will be total 500. तो लुक हियर, यहाँ पे कैलकुलेशन कितने इजीली हो जा रहे हैं. नो नीड ऑफ एडिंग. यहाँ पे रीअरेंज करके यहाँ पे हम लोग ने ओरली सॉल्व कर दिया आंसर. थर्ड क्वेश्चन सेज फाइंड द प्रोडक्ट्स बाय अप्लाइंग सुटेबल प्रॉपर्टीज. तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज अप्लाई करना है. वहां पे क्या था? बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट. ओके. तो यहाँ पे हम लोग ने जो जो मल्टीप्लीकेशन के लिए प्रॉपर्टी स्टडी की थी उसमें से कुछ अप्लाई होगा यहाँ पे. The first one is 154 multiply by 99. अगर 99 की जगह पे 100 होता तो it would be very much easier. तो 99 को हम लोग 100 minus 1 से रिप्लेस कर सकते हैं. So you will get 154 multiplied by 100 minus 1. तो अभी यहाँ पे we can use the distributive property. So 154 multiplied by 100. 154 multiplied by 100 minus 154 multiplied by 1. So you will get 154 multiplied by 100 will be 154 and 00. That is 15,400 minus 154. अभी सिर्फ ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है. तो 0 मतलब वो 10 हो जाएगा आफ्टर कैरिंग द नंबर्स. 10 minus 4 is 6. 9 minus 5 is 4. 3 minus 1 is 2. and then 5 1.
So 15,246 will be your final answer. Now the second one, 1003 multiplied by 98. So यहाँ पे we can either split this number or this number, but splitting this number will be much easier. तो अभी 1003 multiplied by 98 can be written as 98 multiplied by 1003 by using commutative property. फिर 98 multiplied by 1000 plus 3. Now we can use the distributive property of multiplication over addition. तो 98 multiplied by 1000 plus 98 multiplied by 3 by using distributive property. Here also you need to mention, okay? So here you will get 98,000 plus 98 threes are, so 8 threes are is 24, carrying 2, 9 threes are 27 plus 2 29. So adding these numbers, so units place पे 4 आएगा, 9 and then 2. So 98,294 will be our final answer here. The fourth question is find the products using suitable rearrangement. तो यहाँ पे rearrangement करना है numbers का. The first one is 250 multiplied by 35 multiplied by 40. तो clearly we know कि 25 multiplied by 4 is 100. तो अगर ये दोनों मल्टीप्लाई किया साथ में तो it will be much more simple. तो 250 multiplied by 40 and then multiplied by 35. So 25 4s is 100 and then these 2 zeros. So 10,000 multiplied by 35. तो अभी 1 multiplied by 35 is 35 and these 4 zeros. So you will get 3,50,000 as the answer. Now this second question. तो यहाँ पे 4 numbers दिए, तो यहाँ पे 0 0 वाला पेयरिंग साथ में लेंगे and this numbers का पेयरिंग साथ में लेंगे. So you will get 625 multiplied by 8, which is then multiplied by 20 multiplied by 50. So 8 5s is 40, 0 carry 4, 8 2s is 16 plus 4 is 20, carry 2, 6 8s is 48 plus 2 50. तो मतलब आंसर इज 5000 मल्टीप्लाइड बाय 5 2s is 10 और ये 1 0 और यहाँ पे 1 0, तो टोटल 2 0, सो 1000. तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, ओके, तो 5 होगा एंड यहाँ पे 3 zeros, यहाँ पे 3 zeros, तो उसको एज इट इज लिख दो. दिस विल बी आंसर. वन मेन थिंग, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया कि फाइंड द प्रोडक्ट्स यूजिंग सुटेबल रीअरेंजमेंट या फिर बाय यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज, तो वहां पे कोई दूसरा मेथड यूज नहीं होगा. फिफ्थ क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग. द क्वेश्चन इज 497 मल्टीप्लाइड बाय 37 प्लस 497 मल्टीप्लाइड बाय 30. तो यहाँ पे 497 is common, so using the distributive property we can take it common. So 497 multiplied by ब्रैकेट के अंदर 37 फिर प्लस साइन एंड देन 13 using the distributive property. तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी एज इट इज 497 मल्टीप्लाइड बाय 37 प्लस 13 इज 50. ये आंसर हो गया. अभी 497 मल्टीप्लाइड बाय 50 मतलब 497 मल्टीप्लाइड बाय 5 और फिर एक 0 ऐड कर देंगे. तो 7 5 is 35, carry 3, 9 5 is 45, 45 plus 3 is 48, 4 and 8, 4 5 are 20 plus 4 24 और ये 0.
So answer will be 24,850. Seventh question is evaluate the following. The first one is 625 divided by 25, which is then divided by 5. तो यहाँ पे we will first solve the bracket. 625 divided by 25 is 25, because 25 का square is 625. 25 multiplied by 25 is 625. तो उसे divide किया तो we will get 25 and फिर divide by 5. 5 is 25. तो 25 divided by 5. This answer will be 5. The second one is 0 when divided by 21. So when 0 is divided by any number, you get 0 as the answer. तो यहाँ पे आंसर विल बी 0. अभी 22 डिवाइडेड बाय 0, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ 22/0. तो ऐसा कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है. तो मतलब दिस नंबर इज नॉट डिफाइंड. मैथ्स के डेफिनेशन में ही नहीं है ऐसा नंबर. ओके. 8th क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 30 एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर. तो प्रोडक्ट फाइंड करना है. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन फाइंड होना है इसका. 30 एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर. अभी इन द फर्स्ट लेसन वी हैड ऑलरेडी स्टडीड हाउ टू फॉर्म ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर. तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विल बी 999. तो प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर्स, सॉल्यूशन विल बी 30 when multiplied by 999. 9th question, a theatre is to be constructed in which each row must have 40 seats. मतलब एक थिएटर है, it is to be constructed और each row should have 40 seats. मतलब थिएटर है. अभी हम लोग थिएटर में जाते हैं, वहाँ पे सीट्स होते हैं. सीट्स कैसे होते हैं? सीट्स का अरेंजमेंट ऐसे होते हैं. अभी यहाँ पे हम लोग सीढ़ी से जाते हैं, तो यहाँ पे ऐसे रोज होते हैं बहुत सारे, और हर एक रो में कितने पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स होते हैं. तो क्या बोला है, एक थिएटर है, वहाँ पे ईच रो मस्ट हैव 40 सीट्स. मतलब एक रो में टोटल 40 सीट्स. फिर वैसे इसमें 40 सीट्स, इसमें 40 सीट्स, इसमें 40 सीट्स एंड सो ऑन. ठीक है. इफ द रिक्वायर्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ द थिएटर इज 960. मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं? 960. तो फाइंड द नंबर ऑफ रोज इन द थिएटर. तो टोटल 960 सीट्स है, उसमें से हर एक में 40 है. मतलब ईच वन इज डिवाइडेड बाय 40. मतलब नंबर ऑफ रोज फाइंड करने के लिए वी विल डिवाइड 960 बाय 40. तो सोल्यूशन विल बी नंबर ऑफ, पहले गिवन पार्ट लिखते हैं, नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो is 40. Okay. Total number of seats equals to 960. Therefore, total number of rows will be 960 divided by 40. Okay. So 960 divided by 40. तो 4 2 is 80. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 6 और ये 0. तो 4 4 is 16. तो 40 4 will be 160. तो 4 will be 160. तो आंसर will be 24. So therefore you can conclude that total number of rows in the theatre will be 24. 10th question is find the number which on dividing by 25. मतलब एक नंबर है, उसको we are dividing by 25. मतलब 25 will be your divisor. Give 30 as a quotient. तो quotient कितना गया है 30 and 15 as a remainder. तो मतलब यहाँ पे डिवाइजर दिया है, क्वोशिएंट दिया है, रिमाइंडर दिया, और वी हैव टू फाइंड डिविडेंड. तो वी विल यूज द डिविजन एल्गोरिथम हियर. तो सॉल्यूशन बाय डिविजन एल्गोरिथम.
we have dividend equals to divisor multiplied by quotient plus remainder. So divisor is 25, quotient is 30 and 15 is the remainder. So we will first multiply this. So 25 3 is 75. So 25 multiplied by 30 will be 750 plus 15. अभी इसमें we will add 15. तो 15 ऐड करके we will get 5 plus 0 is 5, 5 plus 1 is 6 और ये 7. So answer will be 765. So you can conclude that 765 when divided by 25 gives 30 as the quotient and 15 as the remainder. So this was last sum for the second exercise. Now we will start with the third exercise. Exercise 2.3. In this exercise we are going to study the patterns. Patterns मतलब क्या? ऐसे कुछ तो फ्लो में नंबर्स होंगे जिसको हम लोग सिर्फ ऑब्जर्व करने से we can find the next numbers. यहाँ पे there is no need of actually calculating the solution. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. तो यहाँ पे पैटर्न्स ये है, हम लोग को इसको ऑब्जर्व करना है. फर्स्ट क्या है? 1 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 10. फिर सेकेंड है 12 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 2 इज 110. तो यहाँ पे क्या हुआ? 1 था, तो यहाँ पे एक और नंबर आया 2. सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस, तो यहाँ पे 1 था, इट इज गेटिंग 2. तो यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 110. तो नेक्स्ट 2 के बाद 1 2 तो था ही, साथ में 3 आया. देन मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 1 2 3 4 5 लाइक दैट. And here you are getting 1110. और यहाँ पे 1 2 3 फिर 1 2 3 4 is added. Here 5 is added. तो यहाँ पे क्या होगा? Clearly by observe. अभी यहाँ पे सेम पैटर्न जा रहा है, तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न होगा. 10 110 1010. तो यहाँ पे 11,110. तो यहाँ पे 1,11,110. मतलब यहाँ पे 1 टाइम था, यहाँ पे 1 2 टाइम्स था, यहाँ पे 1 3 टाइम्स था, यहाँ पे 4 टाइम्स एंड here 5 टाइम्स. The second one is identify the pattern and write the next two numbers in the series. अभी यहाँ पे एक सीरीज दिया है, ये पैटर्न को हम लोग को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. फिर नेक्स्ट बॉक्स में कौन से नंबर्स आएंगे वो फाइंड करना पड़ेगा. फर्स्ट इज 1 और 6. तो 1 से 6 कैसे फॉर्म हो सकता है? 1 प्लस 5 इज 6. तो 1 प्लस 5 6 हो गया. तो 6 प्लस 5 भी द नेक्स्ट बॉक्स, लेकिन 6 प्लस 5 इज 11. तो लेकिन यहाँ पे 31 है, बहुत सारा डिफरेंस है. दूसरा वे क्या है? 1 when मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 1. मतलब क्या? 1 में मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 किया. तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 5 प्लस 1 इज 6. फिर 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 1. मतलब ये पैटर्न से फॉलो हो रहा है. 6 multiplied by 5 plus 1, 6 5 are 30, 30 plus 1 is 31. तो बिंगो, यहाँ पे यही पैटर्न यूज हो रहा है. तो वैसे 31 आया, फिर नेक्स्ट 156. तो इसके बाद के दो नंबर्स क्या आएंगे? 156 multiplied by 5 plus 1. तो 156 multiplied by 5. 5 6 is 30, carry 3, 5 5 is 25, 25 plus 3 is 28. And 5 1s are 5 plus 2 7 plus 1. तो इसका आंसर आएगा 781. तो here you will get 781. और तो नेक्स्ट बॉक्स में क्या होगा? 781 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 1. तो 781 मल्टीप्लाइड बाय 5 will be 5 1s are 5, 5 8s are 40, carry 4, 7 5 is 35, 35 plus 4 39. And then adding 1 to it. तो आंसर आएगा 3906. 3906. This will be the pattern here. So with this exercise we finish with our second lesson. In the next lecture we will start with the third lesson, where we will study what are negative numbers
and what are integers. Till then, practice all these sums I have taught you and also the sums I have left for you students to solve. Okay? Happy learning.